saying कि म्यूट से हम क्या अपने दिल को रोक सकते हैं, बट मे बी मोबाइल्स में सेटिंग्स आती हैं जिससे हम अपने ऐप्स पे टाइमर जरूर लगा सकते हैं, फिर आपका दिल जितना भी करे वो खुलेगा ही नहीं। इससे आप अपने आप को कंट्रोल भी कर सकते हैं। दैट डजंट मीन कि आपको अपने दिल पे काबू ही करना पड़ेगा बिना किसी टेक्नोलॉजी के। जब टेक्नोलॉजी मोबाइल में ही मिल रही है तो हम उसे क्यों ना यूज़ करें। देन लाइब्रेरी हम हर जगह नहीं ले जा सकते, ये सच्ची बात है। और फिर किसी ने बोला भी था कि मोबाइल बेकार हो गया, तो मे बी कि यहाँ टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे मोबाइल बना रही है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी के मोबाइल बना रही है जो इतनी पूरी तरह खराब नहीं हो सकते। देन आई बात आँखों की मे बी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी डिस्प्लेस निकाल ली है, इतने अच्छे स्क्रीन निकाल ली है, इतनी प्रोटेक्टिंग ग्लास निकाल ली है, तो हम उन्हें यूज़ भी कर सकते हैं। और हम एक डिस्टेंस पे अगर अपने फ़ोन को यूज़ करें तो उससे कुछ नहीं होता। क्षमा करिए, मैं इस पुस्तक मेला के शुभ अवसर पे मोबाइल के पक्ष में बोल रही हूँ, पर आप भी बताइए यहाँ पे कितनी बुक ही बिजी होंगी, 1 लाख 2 लाख, बट करीब एटा की जनता 11 लाख से ज़्यादा ही है। बताइए, आप ही लोग बताइए कि 9 और 10 लाख लोग कहाँ गए वो लोग? अपने मोबाइल में ही बिजी होंगे ना। और मे बी यहाँ पे भी आधे से ज़्यादा लोग मोबाइल में ही ढूंढ रहे हैं। अगर ऐसा ही है कि यहाँ पे सारी बुक मिल जाती तो क्या कहते हैं, मोबाइल बनते ही क्यों? तो यहाँ पे ऐसे कुछ बहुत सी बुक है जो यहाँ पे नहीं मिल सकती, बट मोबाइल पे एक क्लिक करने पे हम हज़ारों बुक्स ले सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक यू। Representative of Dumri Public Senior Secondary School, which is in Dumri, Eta, and I'm here to share my views in the favor of the book education. The major problem in the online education system is there are abundant distractions where you have no value of time and your self-discipline is not maintained. And whenever you are learning with a book or an offline education, you have value of time, you have a self-growth, mental growth or the physical growth. You have value of time, you have self-discipline maintained in yourself. The existence of the books are the 1000 years ago, but the existence of the online education is beyond the 5 years ago in the pandemic of the corona, which is the COVID-19. There it was helpful, but now it has abundant distractions which looks to be a digital era and a digital literacy. If you are enrolled in any online batches, then the major problem is the teacher coaching. The teacher coaching is if you are running at any batch, you are enrolled in any batch, the teacher gets out of it and you have no option to anything. So your education is abundant. And whenever you are offline or learning with a book, then you have many sources, you are not getting distracted. You can work hard constantly and improve yourself. You can push your limits. But whenever you are learning with online, you have no competitor, you don't know about your competitor. So you will not work hard and you will not push yourself. You are not able to work hard. In a survey of Sweden, they observed that 93% students are not comfortable in the online education because there are too much distractions. The 93% students said the offline education is better because the existence of the book is useful. As a great scientist of the India said, a book is a great gift because you can open it again and again. And I want to say something for the who are disrespecting the books. A book is as useful as a stupid as a mirror is useful to a blind. It is all said by the great Charles. I am very thankful the group of the Ada Book Fair and the all judges. Thank you and have a wonderful day. हिंदू समाज में पुस्तकों को बहुत ही ज्यादा उचित दर्जा दिया गया। हाँ, ये सही बात है कि हमारे हिंदू समाज में पुस्तकों को एक उचित दर्जा दिया गया है, क्योंकि आज मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो व्यक्ति, जो नागरिक, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो पुस्तकों को फोन से अगर ज्यादा महत्व देगा तो वो अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहलाएगा। मैं नहीं मान सकती कि फोन के जरिए आप सब कुछ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि फोन ही आपका फोन ही आपकी जीवनी चला सकता है। कहते हैं ना,
कैपेसिटी बढ़ेगी। मोबाइल फोन्स हमारी कैपेसिटी को एक नैरो करते हैं बिल्कुल, और अगर हम बुक रीडिंग्स करें तो हमारा कैपेसिटी होती है ब्रेन की, वो ब्रॉड होती है। और नेक्स्ट ये ग्लोबल, और हमारी मोबाइल फोन्स आईसाइट वीक करते हैं। ग्लोबल रिसर्च है कि 35% आईज पर ईयर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फोन की यूज से होते हैं। एंड थैंक यू। आदित्य प्रताप सिंह, डुमरी पब्लिक स्कूल एटा। इसके पश्चात तैयार रहेगी आयुषी चौहान, सरस्वती विद्या मंदिर एटा। आदित्य प्रताप सिंह, डुमरी पब्लिक स्कूल धुमरी एटा। आप सभी को आदत बनाओ। मेरा नाम बनाना, बच्चा नाम चाहिए, क्योंकि जो किताबों में होता है वही ज्ञान मोबाइलों में होता है। जो किताबों में ज्ञान है वही मोबाइल ज्ञान है, वही मोबाइल में दिखाया है। अगर आप किसी वर्ड का मीनिंग ले सकते हैं, क्या पता उस समय आपको मोबाइल इंटरनेट कम लगाओ और आपका नेट डिस्कट कर रहा हो, तो उससे आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप करते हैं तो आपके पास, मेरा मानना है कि डिक्शनरी भी होगी, तो आप उसमें जाकर एक दो मिनट में जाके मीनिंग ढूंढ सकते हैं। अब तो डिक्शनरी में कुछ हिंट दे छोटे वर्ड्स के, तो उससे आप जल्दी से जल्दी जाकर अपने वर्ड्स का मीनिंग ढूंढ सकते हैं। अगर हम मोबाइल से जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतनी ज़्यादा आपकी आंखें पर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, आपकी सुनने की शक्ति। इसके पश्चात तैयार रहेगी दंताल इंटर कॉलेज दुबई। ऐसा है 7 साल पुराना है। मेरा नाम राजू राम रतन है। मैं प्रिंसिपल उल्पत्रा इंटर कॉलेज खेड़ा वसुंधरा एटा। वर्तमान समय में मैं जिला अध्यक्ष में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ एकजुट। और यहाँ आज मेले के अंतिम दिन जो पुस्तक मेला में लगा है जनपद एटा में 17 नवंबर से लेकर 20 नवंबर तक, आज उसका अंतिम पड़ाव है। और इस मेले में जो पुस्तकों का जो ज्ञान है उसके साथ साथ ये मेरी कोशिश रही है कि पुस्तकों के ज्ञान के साथ साथ चित्रकला, जो कि सारे संस्कारों की तरह से जननी है, इतिहास की जननी है, उसको भी प्रेजेंट किया जाए यहाँ पर। और पुस्तकों के साथ बच्चों का जो लगाव है और जो होना चाहिए, और जो पुस्तकों से बच्चों का जो अचीवमेंट होता है, जो वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उसके लिए ऐसी पुस्तकों का मेला हमें लगता है कि साल में 2 बार 3 बार लगना चाहिए, और इससे बृहद रूप में लगना चाहिए।
आदरणीय संजीव जी जो ARM सर हैं, उनको और उनकी टीम को बहुत बहुत मैं साधुवाद और बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने 2015 से लेके अब तक लगभग 7 साल से लगातार उसको कंटिन्यूस कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। अभी इस बार भी बहुत सारे प्रकाशन आए हैं जिनकी बेहतरीन पुस्तकें हैं। अभी मैंने देखा कि विदेश से विदेशी लेखकों की भी पुस्तकें यहाँ पर उपलब्ध हैं। तो ये यहाँ के माहौल के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा उपलब्धि है, बहुत बड़ा लक्ष्य था कि जो कि एटा को गन पॉइंट के नाम पे जाना जाता था, एटा को गुंडागर्दी के नाम पे जाना जाता था, एटा को ऐसे सारे माहौल के नाम में जाना जाता था जहाँ पर कि लोगों को बताने में भी शर्म आती थी कि हम एटा से बिलोंग करते हैं। लेकिन आज के परिदृश्य में अगर देखा जाए तो एटा का नाम एक शिक्षा के क्षेत्र में अलग परिदृश्य में जा रहा है और उसमें हम सभी का ये प्रयास है कि जो ये उपलब्धि हासिल हो रही है, जो मान सम्मान बढ़ रहा है एटा का जनपद का, उत्तर प्रदेश और पूरे देश में, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग सोने पे सुहागा देने का कार्य करें। जी बिल्कुल। ऐसे तो मेरा एग्जीबिशन अब तक जहांगीर आर्ट गैलरी और बिरला आर्ट गैलरी और आईफेक्स न्यू दिल्ली सारे जगहों पे लग चुकी है, सारे प्रांतों में लग चुकी है, जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण गैलरियां हैं जिनका कि अपना नाम है विदेशों तक। लेकिन एटा चूँकि मेरा अपना कर्मस्थली मैंने मान लिया है। मैं पैदाइशी मेरी आजमगढ़ की है, मेरा बचपन आजमगढ़ में बीता। शिक्षा मेरी जो है कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से हुई है और अब कर्मस्थली के रूप में एटा में मैं 12 साल से रह रहा हूँ और 12 साल में मेरा पहला ये रहा अनुभव कि मेरे अपने चित्रों की खुद की बनाई हुई चित्रों की प्रदर्शनी में यहाँ पे लगाया। और आपको बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि करीबन हजारों लोगों ने यहाँ पे आकर इस पेंटिंग के बारे में कमेंटमेंट दिया, पेंटिंग के बारे में सराहना दी, पेंटिंग के बारे में बहुत सारा ढेर सारा प्यार दिया। और मैं एक चीज़ और आपको बताऊं कि पहली बार एटा के धरती को ये मिला होगा कि जो चित्रों की प्रदर्शनी गैलरी जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में लगती है, दिल्ली में लगती है, कलकत्ता में लगती है, बम्बई में लगती है, कहीं भी लगती हो, वहाँ से आज पहली बार ऐसा हुआ है कि उस जगह पे लगी है जहाँ से कला की शुरुआत होती है आदिम सभ्यता से लेकर के। पीछे आप देख रहे होंगे एक पेंटिंग बनी हुई है हमारी, ये तथागत गौतम बुद्धा के ऊपर बनी हुई लॉर्ड बुद्धा इस पेंटिंग का नाम है। इसमें आप देखोगे तो पूरा जीवन का शुरुआत है, वहाँ जहाँ से हम लोग जर्नी किए हैं, एक पैर में उस जर्नी का एक कछुआ बना हुआ, उसके पीछे सारी चीजें बनी हुई हैं। तो उसमें देखोगे पूरी जर्नी की शुरुआत है। यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा जंगल है, जंगल में जैसे आदिम मानव सभ्यता से लोग बिलोंग करते थे, रहते थे, वहाँ पे वो जर्नी करते 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 आज कछुए के रूप में धीमी धीमी चाल से लेकर के आज इस मुकाम पे जहाँ पर आप और हम खड़े हुए हैं वहां तक की ये जर्नी है। और इस जर्नी में बहुत बड़ा योगदान रहा है ऐसे महापुरुषों का, ऐसे लेखकों का, ऐसे चित्रकारों का, ऐसे मूर्तिकारों का, जिनकी वजह से आज ये इतिहास गौरवमय इतिहास को हम जान पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। उसमें आप देखेंगे तो सम्राट अशोक कालीन जितने भी शिलालेख बने हैं, सम्राट अशोक कालीन जितने भी धम्मिक स्तूप बने हैं, सांची भरौत जिसमें सारे से बहुत महत्वपूर्ण है, सारनाथ का जो धम्मिक स्तूप है, ये सारे अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित किए हुए और सारा अपना एक इतिहास सजाए हुए है जो तथागत गौतम बुद्ध की सारे संदेशों को सजे के आपके सामने प्रस्तुत करता है। अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो की, तो वहाँ पे जो आज भी जो अवशेष मिल रहे हैं, जो भी आज भी खुदाई में जो प्रतीक चिन्ह मिल रहे हैं, वो सारे उस समय के प्राचीन कालीन सभ्यता के इतिहास के बारे में बताते हैं। और उसी सारी चीजों से प्रेरणा लेकर मैंने ये सारी पेंटिंगों का निर्माण किया है जो वर्तमान में भी एक तरह से जो घटनाएं घट रही हैं, जो वास्तविक घटनाएं हैं, जो समसामयिक घटनाएं हैं, उनको मैंने अपने पेंटिंग में ऑयल पेंटिंग में, एक्रेलिक पेंटिंग के माध्यम से, क्रेयॉन के माध्यम से, क्रिस्टल के माध्यम से, पेन इंक के माध्यम से उन सारी चीजों को मैंने उकेरने का प्रयास किया है। और आपको बताऊं कि इनमें वो सारी चीजें आपको बारीकी से देखने में मिलेंगी जो व्यक्तिगत लाइफ में हम प्रतिदिन जीते हैं, प्रतिदिन सुख भोगते हैं, प्रतिदिन जानना चाहते हैं, प्रतिदिन कुछ न कुछ पाना चाहते हैं, हम अपने सपने को किस तरह से पूरा देखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। इस पेंटिंग को अगर आप देखोगे, ये पेनिंग से बना हुआ है, लेकिन इसमें ये गिटार बनाया गया जिसमें एक जीवन की धुन है, जिसका एक वॉइस है। उस वॉइस को एक चिड़िया के रूप में हमने बनाया। यहाँ पे देखेंगे आप वो जो स्टैंड होता है माइक का, उसको हमने बनाया है कि जो धुन है वो एक पक्षी के रूप में है, जिसकी आवाज को हम लोग तो केवल महसूस कर सकते हैं लेकिन सुन नहीं सकते हैं। ऐसे ही हमारे जो जिंदगी की वास्तविक आवाज है उसको हम बयां नहीं कर सकते, और उसको बयां करने के लिए हमें चित्रों का सहारा लेना पड़ता है, हमें कविताओं का सहारा लेना पड़ता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज एटा जनपद में जो ये बुक फेयर लगा हुआ, उसमें मैंने अपने पर्सनल सोलो शो का एग्जीबिशन किया है, जिसमें ये सारे चित्र आपके सम्मुख प्रस्तुत हैं।
और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चित्र और एक भी है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इस साइड में आपको दिखेगा, जिसमें हम सभी लोग अपने जो जीवन को जीते हैं वो सारा जीवन इसमें दिखाई देता है। इसमें आपको पूरा ब्रह्मांड पीछे दिखाई देगा, ब्लैक होल में पूरा ब्रह्मांड है। पूरे जो हम लोग कहते हैं कि नहीं आकाश गंगाएं हैं, आकाश गंगाओं के पीछे ब्लैक होल के पीछे कौन सी दुनिया वो नहीं हमें पता, लेकिन जो आकाश गंगा है उसमें पृथ्वी का जो अस्तित्व है एक चक्र के रूप में उसमें कोने दिखाया गया। उस चक्र में हमने पृथ्वी को टांगा हुआ है कि पृथ्वी उसी तरह से घुमाव लेकर घूम रही है इस ब्रह्मांड में। और उसमें हमारा जो अस्तित्व है उसको आप देखेंगे, मैंने बनाया हुआ एक फिगर है, ह्यूमन फिगर है, उसमें उसके आंख के ऊपर एक पट्टी लगी हुई है, ताला लगा हुआ है। तो इससे ये होता है कि हमारा जो अस्तित्व, हमारा जो इस समाज में अस्तित्व है एक मानव के रूप में, एक इंसान के रूप में, उसमें हम आज तक इस ब्रह्मांड के ऊपर ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते कि ऐसा ही होगा या ऐसा ही हो सकता है, क्योंकि अभी हम उस ब्लैक होल के आगे नहीं जा पाए हैं। उसको इस पेंटिंग में प्रदर्शित करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा होता है, लेकिन हम बहुत सारी चीजों को अभी भी नहीं जान पाए हैं, जानने के प्रयास में तो है लेकिन जान नहीं पाए हैं, और जानने की भरसक पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इन चित्रों के माध्यम से हम उन सारी चीजों को आपके बीच में ला सकें, जिनके माध्यम से आपको एक ऐसा ज्ञान की प्राप्ति हो जो कभी न मिटने वाला हो। और आने वाले समय में भी जो पुस्तक मेले की उपयोगिता है, इसके साथ साथ हम लोगों ने ये प्लानिंग किया है कि आने वाले समय में 6 दिवसीय कैडर कैंप किया जाएगा, जिसमें कि वर्कशॉप होगी पेंटिंग की। उसमें स्टूडेंट से लेकर के जितने कला के अध्यापक है, जो सामान्य व्यक्ति जो कला करना चाहता है, जानता है, उसको मौका दिया जाएगा अपने हुनर को प्रदर्शित करने का। और वो लोग जब अपने प्रदर्शन को करेंगे, उसमें से पेंटिंग सेलेक्ट जो होगी उसको भी इसी तरह से गैलरी में उसको सजोया जाएगा। और इस एटा का जो इतिहास है, इस एटा के इतिहास को विश्व के पटल पे ले जाने की बात कही जाएगी, विश्व के पटल पे पहुंचाने की बात कही जा रही है। और निश्चित तौर पे मेरा अपना यह विश्वास, अपना यह मानना है कि आने वाले अगले साल में आपको वो चीज दिखेगा जो कि विश्व पटल पे इस पुस्तक मेले को ले जाएगा, और आपको ले जाएगा, और पूरे एटा को ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जिस तरह से आप कोई क्या सोचते हैं कि आगे युवाओं में भी ये ललक पैदा होगी तो पेंटिंग के प्रति उनका क्या रुझान होगा, और आप क्या कर रहे हैं इसके बनाने के? चूंकि युवाओं का रुझान अगर पेंटिंग की तरफ होता है तो ये बहुत गर्व की बात होगी, क्योंकि युवाओं का जो रुझान है अभी मोबाइल की तरफ है, एक इलेक्ट्रॉनिक दुनिया की तरफ है। अगर जब तक उनको इन सारी चीजों की तरफ नहीं जोड़ा जाएगा, वो भटकाव की स्थिति में रहेगा। आखिर भटकाव की स्थिति में जब होता है तो अपने आप को खत्म कर लेता है। आप देख रहे हो कि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही हैं। इस क्षेत्र में हम लोगों का ये कदम है कि ऐसे वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे पेंटिंग के, जिसमें 6 दिन, 4 दिन, 5 दिन उन सारे युवाओं को जोड़ा जाएगा जो इस क्षेत्र को जानता है, इस क्षेत्र में बनना चाहता है, इस क्षेत्र को पाना चाहता है, ड्राइंग स्केच करना चाहता है, पेंटिंग करना चाहता है, एक्रेलिक करना, ऑयल कलर में करना चाहता है, क्रेयॉन में करना चाहता है। उन सारे लोगों को जोड़ा जाएगा एक शिक्षक के रूप में, एक स्टूडेंट के रूप में, या आम पब्लिक जो भी इस क्षेत्र में कुछ करना चाहती है उसको इससे जोड़ा जाएगा। और उसमें सबसे अधिक इन स्टूडेंटों को जोड़ा जाएगा जो आने वाले कल के भारत का निर्माण करेंगे। ऐसे नर्सरी को तैयार करने की हम लोग व्यवस्था, ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं। जो नर्सरी एक जगह तैयार तो होगी छोटे पौधे के रूप में, लेकिन पूरे भारत में जाकर वो पेड़ के रूप में पल्लवित होगी, शिक्षा का प्रचार प्रसार करेगी। ड्राइंग के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, मूर्तिकला के क्षेत्र में, काव्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, चारों विधाओं, 5 विधाओं में जब वो अपने भावों की अभिव्यक्ति करेगी तो ये भारत वास्तव में एक दिन सोने की चिड़िया जरूर कहलाएगा, जो कि एक समय था सम्राट अशोक के शासन काल में। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सन 91 से दिल्ली बुक फेयर में और वर्ल्ड बुक फेयर में जाते रहे हैं। तो हम लोग के मन में एक सपना था, हम लोग जिस तरह के दृश्य वहाँ देखते थे, हम लोग सोचते थे कि उस दृश्य को हम लोग एटा में भी रच सकें। और 2015 से हम लोग लगातार इस कोशिश में हैं कि हम लोग इसको लगातार कामयाबी की तरफ ले जाएं। और पहले 6 मेलों में हम लोगों ने प्रयास किया है पूरी तरह से। और ये 7वां मेला जो इस बार लगा है 4 दिन का, पहली बार 4 दिन का मेला लगा, इससे पहले 3 दिन का मेला हुआ करता था। ये सच बात तो है, इसकी उम्मीद भी हम लोग नहीं कर रहे थे कि ये इतना कामयाब होगा। और पूरा ज़िला, आसपास के ज़िले, सभी छात्र, प्रिंसिपल्स, मैनेजर्स, टीचर्स और समाज के सभी वर्गों के लोग इससे जुड़ेंगे। ये बहुत शानदार बात है कि इस बार पूरा समाज जुड़ा है और हम लोग इस मेले को बहुत कामयाबी की तरफ ले गए हैं। इसमें हमारी टीम का बहुत बड़ा हाथ है। और हम लोग ये मानते हैं कि जब दौर मुश्किल हो, जब अंधेरे का वक्त हो और जब रोशनी की ज़रूरत ज़्यादा हो, तब ज़्यादा प्रयास किए जाने की ज़रूरत है। और हम लोग ये भी देखते हैं कि मोबाइल
का प्रयोग बढ़ा है, तो हम लोग लोगों को किताबों की तरफ ले जाना चाहते हैं और हमें लगता है कि हम लोग इस प्रयास में धीमे धीमे कामयाब हो रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि भविष्य में हम इस दृश्य को और बड़ा कर सकेंगे, ज़्यादा लोगों को जोड़ सकेंगे और लगातार किताबों की तरफ लोगों को ले जाएंगे। किताबों का ज्ञान जो है वो ऑथेंटिक होता है। आप बेहतरीन लेखकों की किताबें पढ़ते हैं, उससे आपको बहुत अच्छा ज्ञान भी मिलता है, उससे आपको आपके व्यक्तित्व को परिमार्जित करने में, ट्रांसफॉर्म करने में बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है और हमें उम्मीद है कि हम लोग इस दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं और हम लोग बहुत कामयाबी की तरफ भविष्य में जाएंगे।